So in this lecture we are going to see the inverse of a square matrix by adjoint method. Inverse of a square matrix by adjoint method. So we have already seen the definitions of minor of an element, cofactor of an element. See, I am again telling you, again I am showing you the definition for minor of an element Aij. Minor of an element Aij. So suppose your matrix, see what I have written here, A is equal to, suppose your matrix is 3 4 minus 5 1, 3 4 minus 5 1. So what is the order of the matrix? It is of order 2 by 2. Okay, so this first element is in first row and first column. This first element is in first row and first column. Second element 4 is in first row and second column. The third element is in second row first column, so I have written here A21, and this 1 is in second row second column, second row second column, so here I have written A22. Okay, so how many total elements are there? These are the 4 elements. So from this 4 elements we can find 4 minors. For each element there is a minor. For each element there is minor. And what is the definition of minor? So what is a minor? Minor of an element Aij, it is denoted by capital letter Mij. For each element Aij there is minor of an element which is denoted by capital letter M and Ij. Suffix में आएगा Ij. So minor of an element Aij is the value of the determinant, is the value of the determinant obtained by deleting or removing ith row and jth column, ith row and jth column in which Aij lies, in which Aij lies. Means what? It is a value of the determinant. Suppose I have to find the minor of an element A11. So minor of an element A11 is denoted by M11. Minor of an element A11 is denoted by M11. To find the minor of this element, I have to remove the row and column in which A11 is there, in which A11 is lies. So A11 lies in first row and first column. So I will remove this first row and first column. So what is remaining? What is remaining? A22. So what is remaining? So M11 is equal to A22. Similarly, how you will find M12? M12 means what? See, M12, it is a minor of element A12. A12 का minor क्या आएगा? M12 आएगा. And how you will find the value? So A12 कौन से row में है? फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है. सो आई विल रिमूव दैट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो व्हाट इज रिमेनिंग? A21. सो व्हाट इज रिमेनिंग? A21. सो M12 का वैल्यू हो गया A21. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड M21 एंड M22. सो ये तो मैंने जनरल फॉर्म में बताया. तो अगर आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम देखोगे, सो व्हाट इज अ माइनर ऑफ दिस एलिमेंट? सी, आई हैव रिटन हियर M11. So this element is minor of this element. As it is in first row and first column, we will denote the minor by M11. So remove this row and column. Remove this row and column. So what is remaining? 1. So यहाँ पे M11 का वैल्यू आ गया 1. नेक्स्ट ये कौन से रो में? फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में. सो रिमूव द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. रिमूव जहाँ जिसमें 4 है वो रो और कॉलम निकाल दो. तो बाकी क्या रह गया यहाँ पे? -5. तो M12 का वैल्यू हो गया -5. ये 12 कहाँ से आया? जो ये एलिमेंट का पोजीशन है, जो ये एलिमेंट का पोजीशन है उसी के ऊपर से उसका माइनर आता है. ओके, ना ये जो -5 है, इट इज़ इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो इसका जो माइनर है वो क्या आएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 21. सो M21. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर हम डिनोट करेंगे M21. सो M21 मीन्स व्हाट? रिमूव दिस -5, जो भी रो में कॉलम में वो निकाल दो. व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 4. ओके, M22. A22 के ऊपर से आएगा M22. 22 मीन्स व्हाट? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. रिमूव सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. व्हाट इज रिमेनिंग? 3. So these are the values for minors. Okay, next definition is for cofactor of an element Aij. Cofactor of an element Aij. So as for each element we are finding minors. Similarly, from minors we can find the cofactors of an element. Similarly,
from minors we can find cofactors of an element aij. So what is the formula? See, aij is a notation of cofactor of an element. So what is the formula? Aij is equal to minus 1 raised to I plus j, minus 1 raised to I plus j into mij. ओके, तो अगर ये जो 2/2 मैट्रिक्स है इसमें माइनर्स कितने आए? 1 2 3 4, तो को फैक्टर्स भी कितने आएंगे? 4 को फैक्टर्स आएंगे. कौन कौन से? a11, a12, a21 and a22. So I have written here a11, a12, a21 and a22. And what it is? फॉर्मूला क्या है? माइनस 1 रेस टू आई प्लस जे. यहाँ पे आई जे था इसलिए यहाँ पे आई प्लस जे डाला, तो यहाँ पे माइनस 1 रेस टू 1 प्लस 1 इंटू m11. आई जे का जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया m11. सो इट इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2. सो माइनस 1 स्क्वायर इज 1 इंटू m11. सो m11 का वैल्यू कितना निकाला हमने? 1. सो पुट हियर 1. सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट minus 1 raised to 1 plus 2, minus 1 raised to 1 plus 2 into m12. So it is equal to minus 1 raised to 3. minus 1 raised to odd number है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? minus 1. and what is the value of m12? minor of a12. m12 का वैल्यू क्या है? minus of 5. so I have written here minus of 5. so minus 1 into minus of 5 is equal to 5. Similarly a21 is minus 1 raised to 2 plus 1, minus 1 raised to 2 plus 1 into m21. so minus 1 raised to odd number is minus 1 and m21 का वैल्यू है 4. so I have written here 4. so it is equal to minus 4. Similarly we will find the value for a22. Now from this cofactors we can write the cofactor matrix. From these values of cofactors we can write cofactor matrix. and क्या है वो? how you will write? ये जो फर्स्ट दो एंट्रीज है, ये जो फर्स्ट a11 a12 है, a11 a12 है, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम. वेट अ मिनट, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने लिखा है तो यहाँ पे a11 a12 रो में आ जाएगा, a21 a22. मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता दिया. एक मिनट में नेक्स्ट पेज शेयर करती हूँ. वेट अ मिनट. सी कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे आएगा? जैसे हम एलिमेंट्स लिखते हैं. सी हाउ आई एम रिटर्न एलिमेंट्स a11 a12. तो इसी ये जो स्मॉल a है इसको आप कैपिटल A में रिप्लेस कर दोगे. कैपिटल A से क्या कर दोगे? रिप्लेस कर दोगे. तो a11 a12 a21 a22. सी a11 a12 a21 a22 ये कैपिटल A हो गए सबके सब. a11 a12 a21 a22. और जो वैल्यूज़ हमने निकाले थे a11 a12 के वो एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दो. तो a11 का वैल्यू क्या है? व्हाट इज़ वैल्यू फॉर a11? इट इज़ इक्वल टू 1. नेक्स्ट a12 का वैल्यू क्या है? 5 है. सो इट इज़ फर्स्ट रो, देन इट इज सेकेंड रो. ये हो गया आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो. ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स. ओके, नाउ फ्रॉम दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स वी कैन फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. फ्रॉम द कोफैक्टर मैट्रिक्स we can find adjoint of a matrix. so what is the adjoint of a matrix? Adjoint of matrix is obtained by taking transpose of a cofactor matrix. transpose मतलब क्या? जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो हो जाएगा सेकेंड कॉलम. ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स. ओके, सो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो गया और सेकेंड रो हो गया सेकेंड कॉलम. सो यार 1 5 आपका फर्स्ट कॉलम आ गया, -4 3 सेकेंड कॉलम आ गया. ये हो गया आपका वैल्यू फॉर अ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए. दिस इज योर वैल्यू फॉर एडजॉइंट ऑफ ए. अगर आप ये प्रॉब्लम देखोगे जहाँ पे मैंने a11 a12 के वैल्यूज़ निकाले हुए थे, तो अगर आप इनको देखोगे तो ये जो है ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम 1 5. चेक हियर 1 5 हो गया फर्स्ट कॉलम. एंड जो नेक्स्ट टू एंट्रीज है -4 3 वो हो गया आपके सेकेंड कॉलम. ओके, सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड. व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर अ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर अ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड वेयर व्हाट इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इट इज एडजॉइंट ऑफ ए. सो ए इज़ गिवन. यहाँ पे मैंने फिर से एक बार लास्ट पेज से फिर से ए का वैल्यू लिख दिया है टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए.
So what is the determinant of A? Determinant of A 3 into 1 minus of 5 into 4. ओके, तो कितना वैल्यू हो गया ये 3 माइनस ऑफ -20, 3 plus 20 is equal to 23. So here A inverse and adjoint of A क्या लिखा है? Adjoint of A is 1 minus 4 5 3. I have written here 1 minus 4 5 3. So A inverse का फॉर्मूला क्या था? 1 upon determinant of A into adjoint of A. So put here value 1 upon determinant of A कितना निकाला? 23 into adjoint of A का वैल्यू क्या है? 1 minus 4 5 3. Okay, so this is the inverse of matrix 3 4 minus 5 1. This is the inverse of matrix A. Okay, now we will solve some problems. तो ये तो हो गया इसका theory, inverse of a matrix by adjoint method. Now we will solve some problems based on this. How to solve exactly आपको लिखना कैसे, उसमें definitions भी थे. Okay, now here see, find the inverse of following matrix. Okay, matrix दिया हुआ है. So what is the order of this matrix? Order of the matrix is 2 by 2. Now generally 2 by 2 matrix का notation कैसे आता है? See, this element is in first row first column. This element is in first row first column. Second 5 किस में है? फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है. फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में. -3 इज इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सी, ये आप बात याद रखना, ये R1 है आपका, ये R2 है. रो 1 रो 2 ये होता है आपका कॉलम 1 और ये होता है आपका कॉलम 2. सो -1 अगर आप देखोगे तो ये रो 1 में है और कॉलम 1 में है. 5 किस में है? रो 1 में है, कॉलम 2 में है. -3 इज इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम and 2 is in second row second column. second row second column. So total elements कितने हो गए? A11 A12 A21 A22. 4 elements हो गए. So for this 4 elements we will find the 4 minors. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे? solution में क्या करेंगे? For this A के लिए, ये जो मैंने, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिखा है, ये आपको लिखना नहीं है. ये भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है, तो एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम है वो नहीं लिखना है. सो हाउ यू विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो A इज इक्वल टू, A क्या दिया है यहाँ पे? -1 5 -3 2. नाउ वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A. फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A. क्यों डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of A. 1 upon determinant of A into adjoint of A. So for this formula we have to first find determinant of A and then we have to find adjoint of A. Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will find the determinant of A. So what is determinant of A? Determinant of A is equal to -1 5 -3 2. So it is equal to -1 into 2 minus 5 into -3. So it is equal to -2 minus of -15. So it is -2 plus 15. -2 minus of minus will become plus 15. So 15 minus 2, it is equal to 13. Okay, so what you get? Hence determinant of A is not equal to 0. It is equal to 13 आ गया है. It is determinant of A is not equal to 0 means what? A इनवर्स एग्जिस्ट. इट इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, यू कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. ओके, हेंस व्हाट यू विल राइट? A inverse exist. Hence A inverse exist. Okay, now from this 4 elements we will find the 4 minors. Okay, now what are the minors of elements? Minors of elements. So it is equal to, how you will write? We require, see 4 elements है तो हम लिखेंगे यहाँ पे M11 M12 M21 M22. ओके, M11 M12 M21 M22. जो A में है उसी को हमने कैपिटल M से यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? माइनॉर्स निकाल रहे हैं. एंड हाउ यू विल फाइंड M11? तो रिमूव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स. रिमूव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो हियर फर्स्ट रो, सी दिस इज योर मैट्रिक्स A. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकल गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग? 2. सो M11 इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो रिमूव फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम रिमूव हो गया, सो व्हाट इज रिमेनिंग? -3. So it is equal to -3. Next second row
फर्स्ट कॉलम, चेक योर मैट्रिक्स ए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो सेकेंड रो निकल गया और फर्स्ट कॉलम निकल गया. सो व्हाट इज रिमेनिंग? 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट? रिमेनिंग वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 है. नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम निकल गया. व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर? -1. तो ये हो गया आपके माइनर्स, ये हो गया आपके माइनर्स. फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड और वी विल फाइंड cofactors of an element, cofactors of an element, cofactors of elements. So it is a11, a12, a21, a22. okay, so what is the formula? Formula क्या लिखा था मैंने? -1/1 + 1 into m11. so it is equal to -1/1 + 1 कितना हो गया यहाँ पे? इवन नंबर, -1² इंटू m11. m11 का वैल्यू कितना आया है? 2. सो इट इज़ 1 × 2. सो इट इज़ इक्वल टू 2. इट इज़ इक्वल टू 2. तो सबसे इजी बात मैं आपको बता दूं कि अगर जहाँ पे 1 + 1 क्या है? यहाँ पे इवन नंबर है. 1 + 1 क्या है? इवन नंबर है. तो ये जो 2 है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से मल्टीप्लाई करोगे. जो दो रो और कॉलम का एडिशन इवन नंबर आता है वहाँ पे a11 का वैल्यू सेम एज दैट ऑफ m11. ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे a12 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/1 + 2 इंटू m12 और m12 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -3. सो इट इज़ इक्वल टू 1 + 2 कितना हो गया? 3. सो -1/3 कितना हो गया? -1 इंटू -3. इट इज़ इक्वल टू 3. तो यहाँ पे जहाँ पे ऑड इंडेक्स, ऑड एडिशन है, रो और कॉलम का एडिशन ऑड है, वहाँ पे -3 का साइन क्या हो गया? +3. तो एक बात याद रखना, जहाँ पे इवन एडिशन आता है, दो नंबर्स का एडिशन इवन नंबर आता है, वहाँ पे टर्म वैसे के वैसे रहेगा. और जहाँ पे ऑड नंबर एडिशन में आ रहा है, यहाँ पे 1 + 2 एडिशन में क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है. तो ये जो नंबर है, अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे आप देखोगे 2 + 1 कितना आता है? 3. सो 3 इज़ अ ऑड नंबर. ऑड नंबर है मतलब 5 का साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे? -5. ऑड नंबर है तो साइन क्या हो गया? चेंज हो गया. 2 + 1 क्या है? 3 है एंड 3 इज़ अ ऑड नंबर. सो -1/2 ऑड नंबर है मतलब ये जो नंबर है इसके साथ -1 से मल्टीप्लाई करना है. तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? 5 है इसलिए यहाँ पे -5 लिख दिया. अगर यहाँ पे -5 होता तो हम +5 लिखते थे. तो जो नंबर है उसका साइन चेंज कर दो ऑड नंबर के लिए. नाउ 2 + 2 कितना आता है? 4 एंड 4 इज़ अ इवन नंबर. सो 4 इज़ इवन नंबर मीन्स व्हाट? साइन विल नॉट गेट चेंज. जो नंबर है वो वैसे के वैसे रिपीट होगा. तो यहाँ पे नंबर क्या है? -1. तो यहाँ पे आपका a22 का नंबर आ जाएगा -1. ओके, तो अगर आप देखोगे तो साइन कहाँ पे चेंज हुआ है? 1 1 2 वैसे के वैसे आ गया. यहाँ पे ऑड नंबर है 1 + 2 इसलिए -3 का हो गया +2. यहाँ पे भी ऑड नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है इसलिए 5 का हो गया -5. यहाँ पे इवन नंबर है इसलिए सेम एज इट इज़ वो नंबर आ गया. ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी विल राइट द एडजॉइंट ऑफ ए. फ्रॉम दिस वैल्यूज we will write the value of adjoint of A. Hence, adjoint of A is equal to, so the first column is A11, A12, A21, A22. See, I have written one by one. Okay, क्या लिखा है मैंने? देखो यहाँ पे A11, A12 ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम. नेक्स्ट के जो दो वैल्यूज़ है ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम. सो इट इज़ इक्वल टू A11 का वैल्यू क्या निकाला आपने? A11 का वैल्यू निकाला 2. A12 का वैल्यू आ गया आपका 3. A21 का वैल्यू आ गया आपका -5 एंड A22 का वैल्यू आ गया -1. सो दिस इज़ योर वैल्यू फॉर एडजॉइंट ऑफ A. ओके, नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? वी नो दैट, राइट द फॉर्मूला फॉर A इनवर्स. सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of A. 1 determinant of A into adjoint of A. So what is 1 determinant of A? Determinant का वैल्यू हमने निकाला था. Determinant of A क्या आया था हमारा? 13. So let this be 1. So right here determinant का वैल्यू आ गया 13
into adjoint of A. And what is the value of adjoint of A? 2 minus 5 3 minus 1. And right here ये 13 आपने कहाँ से लिया? From equation number 1. So this is your value for A inverse. So A inverse is equal to 1 upon 13 into 2 minus 5 3 minus 1. This is your value for inverse of a matrix. This is your inverse of matrix A. Okay, formula ये आ गया आपका inverse. Okay, very 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 easy problem. Now we will see the inverse of 3 by 3 matrix. Now we will see the inverse of 3 by 3 matrix. Okay, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह है 3 by 3 matrix. 3 by 3. 3 by 3 means what? The total number of elements कितने आ गए? 3 by 3 matrix. 3 rows 3 columns. 3 rows 3 column. So ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 by 3. टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए? 3 into 3 9 एलिमेंट्स आ गए. ओके, नाउ जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में आपको बताया था कि एक जनरल फॉर्म होता है, तो 3 by 3 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसे आएगा? ये जो एलिमेंट है ये किस में है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दिस इज इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. ये 0 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ये जो एंट्री है ये 3 है, वो कौन से रो में आ रहा है? सेकेंड रो में आ रहा है. सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है. ये कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ये 0 कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम में इसका पोजीशन है. 5 का पोजीशन कहाँ पे है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. सो यू विल राइट हियर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. 2 का पोजीशन कहाँ पे है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम. थर्ड रो सेकेंड कॉलम. -1 का पोजीशन कहाँ पे है? थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो आपको क्या निकालने हैं? ये हो गया आपके माइनॉर्स के लिए एलिमेंट्स. आपको माइनॉर्स इसी के ऊपर से निकालने हैं. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन A is equal to, write given matrix as it is, 1 0 0 3 3 0 5 2 minus 1. Now what is the first step? We will first find the determinant of A. Now find the determinant of A. So determinant of A is equal to 1 0 0 3 3 0 5 2 minus 1. So how you will find the determinant? Determinant कैसे find out करते हैं? फर्स्ट एंट्री 1 इंटू जिसमें 1 है वो रो और कॉलम निकाल दो. बाकी जो बच गया है रो जिसमें 1 है वो रो और कॉलम निकाल दो. सो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट इज 3 0 2 minus 1. सेकेंड एंट्री विथ माइनस साइन. सो माइनस ऑफ ज़ीरो. तो ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो निकाल के कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो तो वो तो वैल्यू ज़ीरो ही होने वाला है. सो कीप इट एज इट इज़. थर्ड एंट्री भी क्या है यहाँ पे? ज़ीरो. सो थर्ड एंट्री भी क्या है यहाँ पे? ज़ीरो. ओके, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉब्लम हो गया. ओके, सो ठीक है, चलो एडजॉइंट मेथड में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. तो जैसे हम रेगुलर डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखते थे तो उसके वैल्यूज़ आपको निकालने पड़ते थे. तो यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू -1 कितना हो गया? -3 -0. सो आपके डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 1 इंटू -3 इज़ -3. हेंस determinant of A is not equal to 0 as it is -3, so it is not equal to 0. Hence A inverse exists. A inverse exists. Okay, now we will find the minors of element. Now we will find the minors of an element. Okay, तो minors of कैसे find out करोगे? नाउ कौन कौन से कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 9 एलिमेंट्स है. तो 9 एलिमेंट्स के आपको क्या फाइंड आउट करने हैं? माइनॉर्स फाइंड आउट करने हैं. सो यहाँ पे M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33. तो जो ये एलिमेंट्स है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये फर्स्ट 3 एलिमेंट दिस ये मैंने लिख दिए. नेक्स्ट 3 दिस एंड दिस. ओके, ये M के साथ मैंने लिख दिया यहाँ पे. दीज आर द एलिमेंट्स विथ M. ओके, नाउ हाउ यू विल फाइंड द दिस वैल्यूज ऑफ द माइनर्स. नाउ M11 मीन्स व्हाट? रिमूव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. रिमूव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो व्हाट इज़ द रिमेनिंग वैल्यू? ये जो मैट्रिक्स बचा है, ये 2x2 मैट्रिक्स बचा है, इसका आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है. तो हाउ आई एम राइटिंग लाइक दिस. ये जो एग्जांपल है ये अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ.
302 माइनस वन, 302 माइनस वन, तो वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे -3 -0, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया -3 -0, सो इट इज़ इक्वल टू -3, इट इज़ इक्वल टू -3. नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वी विल फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम निकाल दो, फर्स्ट रो निकाल दो, सेकेंड कॉलम निकाल दो. सो व्हाट इज रिमेनिंग 350 minus 1, so it is 350 minus 1, so it is equal to what, 3 into -1 -3 -0, -3 -0 कितना आता है -3. ओके, ये वैल्यू आ गया आपका -3. नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो third column, so what is remaining 3352, so write here 3352, and what is the determinant, इसका determinant क्या आएगा 3 into 2 6 minus 15, see it is 6 minus 15, so 6 minus 15 का वैल्यू कितना आ गया -9. ओके, नेक्स्ट 2 1 का माइनर हम निकालेंगे. सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या निकालोगे आप यहाँ से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जो ए दिया गया है इसमें से आप निकालोगे सेकेंड रो, ये सेकेंड रो निकल गया और फर्स्ट कॉलम निकल गया, सेकेंड रो निकल गया और फर्स्ट कॉलम निकल गया. सो व्हाट इज रिमेनिंग 0 0 2 -1, सो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 0 0 2 -1, सो 0 into -1 0 -0 0 -0, इट इज़ इक्वल टू 0. नेक्स्ट है वैल्यू M22, नेक्स्ट है वैल्यू M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जो मिडल के देखो ये मिडल का रो भी चला गया, मिडल का कॉलम भी चला गया. सो व्हाट इज रिमेनिंग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चला गया तो 150 -1, 150 -1, सो इट इज इक्वल टू 1 into -1 -1 -0, -1 -0 माइनस ऑफ 1. 2/2 डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं सबको पता होना चाहिए यहाँ पे. नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया. सो व्हाट इज रिमेनिंग 1052, सी सेकेंड रो थर्ड कॉलम निकालने के बाद वैल्यूज़ क्या आते हैं 1052, सो 1052, सो इट इज़ इक्वल टू 1 into 2 2 -0, 2 -0 इज 2. नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट है थर्ड रो निकाल दिया मैंने यहाँ पे और फर्स्ट कॉलम निकाल दिया. तो व्हाट इज रिमेनिंग 0 0 3 0, सी हियर 0 0 3 0, सो इट इज इक्वल टू 0 -0, इट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट है वैल्यू थर्ड रो सेकेंड कॉलम, चेक हियर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो 1300, 1300, so it is 0 -0, it is equal to 0. Third row third column, so what is remaining 1033, 1033, so it is equal to 1 into 3 3 -0 is 3, sorry 3 -0 is 3. okay, now ये तो हो गया आपके माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट. तो फ्रॉम दिस वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट, फ्रॉम दिस वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट. तो कैसे डिनोट करोगे आप उसको A11 A12 A13 A21, जो आपके माइनर्स है उसी में कैपिटल A लगाना है A23. नेक्स्ट है A31 A32 A33. ओके, तो यहाँ पे मैं जो आपको बोला था ऑड और इवन वही फॉर्मूला लगाने का. तो यहाँ पे देखो 1 + 1 क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए एज इट इज़ एंट्री, इवन नंबर के लिए एज इट इज़ एंट्री. 1 + 2 क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए साइन चेंज, तो -3 का हो जाएगा +3, -3 का हो जाएगा +3. नेक्स्ट 1 + 3 कितना आता है 4, एंड 4 इज़ अ इवन नंबर, तो जैसे है वैसे के वैसे टर्म आएगा यहाँ पे -9. नेक्स्ट 2 + 1 इज़ 3, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए साइन चेंज, लेकिन जीरो का साइन क्या होता है प्लस भी जीरो सेम है और माइनस भी जीरो सेम ही है, सो जीरो विल रिमेन 0. A22 2 + 2 कितना आता है, व्हाट इज़ 2 + 2 4,
सो 4 क्या है, इवन नंबर है, तो जो 2 का है इवन नंबर के लिए वैल्यू रिमेन सेम, तो -1 का क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। 2 + 3 क्या है, 5 है। ओके, 2 + 3 क्या है, 5 है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो +2 का यहाँ पे आ जाएगा -2। नेक्स्ट A31, 3 + 1 कितना है, इवन नंबर है। 3 + 1 4, 4 इज़ अ इवन नंबर। सो ज़ीरो का साइन तो कुछ चेंज करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी ज़ीरो है, ज़ीरो का साइन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 3 + 3 इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए साइन नहीं चेंज होता, तो ये 3 एज इट इज़ है। तो यहाँ पे एक बात याद रखो कि ऑड नंबर के लिए सिर्फ साइन चेंज होते हैं। तो ऑड नंबर कौन से, 1 + 2 ये एक ऑड नंबर था, 2 + 1 ये ऑड नंबर था, 2 + 3 ये एक ऑड नंबर था, और 3 + 2 ये एक ऑड नंबर था। बाकी देखो 1 1 1 3 2 2 3 1 3 3 ऑल दीज आर इवन नंबर। तो जो यहाँ पे इवन नंबर के लिए जो टर्म्स है वो यहाँ पे सेम है, और जहाँ पे मैंने टिक किया है उन्हीं के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। लेकिन जहाँ पे ज़ीरो है उधर हमें साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, साइन ज़ीरो का साइन चेंज करके -0 हम नहीं लिख सकते। सो फ्रॉम दिस वी विल राइट द एडजॉइंट ऑफ ए। Hence, what is adjoint of A? So, adjoint of A is equal to C A11, A12, A13। जो फर्स्ट कॉलम है C, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, देन ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम, और ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, नेक्स्ट हो गया आपका सेकेंड कॉलम, और नेक्स्ट 3 हो गया आपका थर्ड कॉलम। सो यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर आप डायरेक्ट भी एडजॉइंट लिखते हो तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने ये लिख दिया। ये स्टेप आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, यू कैन राइट डायरेक्ट वैल्यू। सो A11 का वैल्यू क्या है, -3, 3 -9। नेक्स्ट है 0 -1 -2, नेक्स्ट है 0 0 3। ओके, so this is your value for adjoint of A. This is your value for adjoint of A. Now by adjoint method, what is A inverse? A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. 1 upon determinant of A into adjoint of A. And what is the determinant of A? Determinant of A का वैल्यू हमने क्या निकाला था? Determinant of A का वैल्यू हमने निकाला था -3. So let this be 1. So -3 into adjoint of A. So it is equal to -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3 from 1. Okay. सो व्हाट यू कैन डू हियर, सी ये तो है माइनस है, ये माइनस साइन आप क्या कर सकते हो, अंदर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 को ऐसे ही बाहर रखो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका साइन हो जाएगा +3। 0 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -3, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा 1 0, सबके साइन चेंज हो जाएगा 9 2 -3। सो दिस इज़ योर वैल्यू फॉर A इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपने यहाँ तक भी आंसर लिखा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये -3 थोड़ा बाहर ठीक नहीं लगता, इसलिए माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, वेरी 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 इजी प्रॉब्लम। कुछ नहीं, हमने क्या किया, यहाँ पे एलिमेंट्स में पहले कन्वर्ट किया, फ्रॉम एलिमेंट्स हमने यहाँ पे माइनॉर्स निकाले, और वो माइनॉर्स कैसे निकाले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकाल दिया, तो रिमेनिंग मैट्रिक्स का हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया। सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट, और फ्रॉम दिस डिटर्मिनेंट वी हैव फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स के ऊपर से हमने क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू पुट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दिया, सो दिस इज़ योर वैल्यू फॉर ए इनवर्स। ओके, सो ये आपका एक्सरसाइज जो सेकेंड एक्सरसाइज है 2.2, उसमें से ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड प्रॉब्लम है ये, और सेम टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, सेम टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2x2 मैट्रिसेस है और 3x3 मैट्रिक्स है, तो मेथड सेम ही है।
तो प्लीज़ आप उसे होमवर्क के लिए ट्राई करो। थैंक यू।